Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. With the pray and hope for your well-being, I'm starting here the program for today. और आपको ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आज के प्रोग्राम में since it is Wednesday and we had promised you last Wednesday when I was talking with one of my prestigious guests last week that he is going to join us every Wednesday from now onward. I'm talking about Muhammad Sajwani, who is a senior C-level professional in terms of when you talk about HR industry. He has been serving in different brands and is known as an institution in terms of HR when we talk about Pakistan and HR industry. और आज का प्रोग्राम it is very close to my heart because I'm always been speaker of youth in Pakistan and I understand कि यूथ की क्या इंपॉर्टेंस है और आज का जो प्रोग्राम है वो यूथ सेंट्रिसिटी के ऊपर हमने डिजाइन किया है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि since this program is not the formal interview program, we are going to have three people together who will be having a panel discussion for the benefit of all the audience. तो मैंने इसको डिजाइन करने की इस तरह से कोशिश की है कि we are fortunate enough to have Sajwani Saab being talking on youth centricity with another professional from HR industry who is known in his circle for carrying different caps on his head when we talk about HR practices. Youth himself, and he's going to talk about the problems, the opportunities, how we can make best out of social media when we talk about youth, and much more. Now, without wasting any further time for the audience in introduction, let me talk to the guests directly, and let me take you first to Sajwani Saab. Assalamu alaikum, Sajwani Saab. वालेकुम अस्सलाम शहजाद, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सजवानी साहब. मुझे ये बताइए कि हमने लास्ट वीक में बात की थी कि हम हर वेडनेसडे को डायरेक्ट लाइव बात किया करेंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट अप्रिशिएट एंड आई एम थैंकफुल कि आपने ये टाइम दिया और हमारे प्लेटफॉर्म पे आए. मैं ये चाहता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है ये यूथ सेंट्रिसिटी के हवाले से यू टेल अस समथिंग अबाउट द प्रोग्राम्स इंटेंट. उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि हम इस प्रोग्राम की पैनल डिस्कशन में जो और लोग हैं उनको कैसे ऑन बोर्ड कर रहे होंगे. By defining this as a topic for today, I really intended that we should communicate to our younger audience, क्योंकि हमारी ज़्यादातर audience youth हैं, कि we are concerned, equally concerned about their issues, their problems, their well-being, and so on and so forth. So, and we love to connect with our youth population in Pakistan, and our Prime Minister keeps telling us that we are one of those countries जहाँ पे youth जो है वो बहुत बड़ा chunk है हमारी total population का. I don't want to misquote the number about the youth population of Pakistan, but that is a large number in itself. If any one of you remember the exact numbers, you guys can quote. But क्योंकि यही हमारी future की leadership है, यही हमारी future की political leadership है, corporate leadership है, और we have to count on them, and we need to help them achieve their goals, and we need to understand their problems, and we need to give them solutions if we have any. So having said that, that's how we invited one of our, because you are still in the definition of youth, I'm not, but we have another gentleman जिनको अभी आप introduce करेंगे, Abdul Jawad Khatak, who is of course a youth, and he's quite popular in youth circle through his popular presentations and lectures, and he's a speaker at youth level, and that's how we want to help our youth of today. And if they are online and they want to ask us anything, we are here to help them. Over to you, Shahzad. Thank you very much.
Here comes Abdul Jawad Khatak. Abdul Jawad Khatak, I would request you to mute the mic before I introduce yourself. Abdul Jawad Khatak के साथ मेरी पहली मुलाकात जो है वो last week में हुई and found him real nice gentleman with a lot of wisdom. इनकी age से ये feel नहीं होता है कि ये इतना wisdom अपने अंदर लेके चल रहे हैं. A nice character to have as a friend. Abdul Jawad Khatak is known for carrying different caps of HR professionalism when we talk about his professional engagements. Before we jump into the topic itself, I would request Abdul Jawad Khatak to briefly introduce himself. Thank you, Shazad. Thank you, Sajwani Saab, for the flowery words. Abdul Jawad Khatak is an HR professional. He is working with a company in Dubai where he consults different companies and implements ERP systems. He at the same time works with Evolve HR. Sajwani Saab is on the call. He is heading the organization. I own an organization, training organization with the name of TSOL. I'm co-founder for that company. And I am on a mission to educate people. I believe that what we have gone through, now with that, I'm a public speaker and I try to take all the opportunities wherever it's possible where we can educate people. That's Abdul Jawad Khatak. And that is nice. That is really nice. You people know, आप अपना mic mute कर लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी. You people know that National Human Resource Development Report 2 years back quoted Pakistan to be the country with second youngest country in terms of dwelling youth population in the world after Afghanistan. And जो अभी सजवानी साहब कह रहे थे, the number I have with me in the data, it is 64% of the population. 64% of the country's population is in the age group which is less than 30 years. और जब हम 30 years से नीचे की स्लैब की बात करते हैं तो एक ऐसा स्लैब जिसको गेम चेंजर कहा गया है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर, दैट स्लैब ऑफ द एज इज वेरिंग फ्रॉम 15 years to 29 years. 15 years to 29 years का जो स्लैब है वो पाकिस्तान में उस 64% का 29% is comprising of this age group. I mean, game changer group जो है पाकिस्तान में यूथ का, it is an indication that Pakistan is just standing on tip of the iceberg, जहाँ से it is on the launching pad to drive and fly high into the economical well-being. And when we talk about economical well-being, you will agree with me कि 3E का जो concept है, अगर हम youth centricity की बात करते हैं तो इनको education, empowerment और engagement अगर दे देते हैं तो they are going to fly high. I want Sajwani Saab to tell us something about HR industry's current working. कौन से ऐसे बड़े डिनोमिनेशंस या बड़े पिलर्स हैं जिनके ऊपर आज HR की पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है वो यूथ को फोकस करके काम कर रही है. ओवर टू सजवानी साहब. थैंक यू शहजाद. जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेटेजी का ताल्लुक है आजकल, इवन आई सी दिस सिंस द ईयर 2004 जब पाकिस्तान में मल्टीनेशनल्स का और टेलीकॉम का बूम आया था, जो कंपनी की अंडरलाइन स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि दे वांटेड टू हायर एंड दे स्टिल वांट टू हायर young people, anybody above 24 or sorry 22 and below 27 28. तो ये एक स्ट्रेटेजी थी जिसमें काफी ऑर्गेनाइजेशंस की एवरेज एज जो है वो बिलो 30 आ रही थी, और ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है. और हमने देखा है कि आजकल बहुत सारी मल्टीनेशनल्स में भी और इवन अब लोकल कंपनीज में भी जो सी लेवल मैनेजमेंट है वो भी दे आर प्रीटी मच यूथ. ये एक ऐसा टर्न अराउंड है पाकिस्तान में पिछले 15 से 18 सालों के दरमियान, जो कि हमारी यूथ को एम्पल अपॉर्चुनिटी, हालांकि एक तरफ हमारी यूथ जो मिसगाइडेड मिसाइल की तरह जो चल रही है उसमें एक इशू ये भी है कि जी हमें कुछ नहीं दिया जा रहा, हमारे हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, हमें तालीम के, रोजगार के मौके नहीं है. लेकिन ऑन द अदर हैंड ये भी एक रियलिटी है पाकिस्तान में कि आपकी यूथ
और खास तौर पर वो यूथ जो कि एजुकेटेड है, जिनको लैंग्वेज स्किल्स पे उबूर है, जो इंटेलेक्चुअली साउंड हैं, दे गेट अपॉर्चुनिटीज without any purchase system, and they get into the mainstream organizations जहां पर वो अपने बलबोते के ऊपर. I remember, I knew, I still in fact remember and I know that a few gentlemen in telecom sectors who joined as very junior people, very junior people, and today they are the C levels in those organizations. I don't need to name any organization in particular, but that is the hardcore reality. And time has proven that these young chaps who were beginners at one point in time, they joined that very company as a junior person, junior most person, now are at the top management circle के अंदर, and they are being recognized for their hard work and for their intellect and for the capacity that they have. So the organizations जितने transparent हैं और जितने होते जाएंगे over the period of time, youth of Pakistan, लेकिन एक तरफ वो जो disgruntled youth जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि शायद उतने educated नहीं है, they try to find ways to the Middle East and to these areas for lower level of jobs, and they say goodbye to Pakistan. But I think time has now proven as well that the Middle East is the वो कहते हैं ना English में, the grass at the neighbor's field looks green, but it's not never green. It's something like that. That grass at the neighbor's field is not the green, or greener. So that is the problem, that when they look at the actual situation, they find that it is better that whatever time is available. मैं आपका कल का एक पोस्ट पढ़ रहा था, कल का था या आज सुबह को, कि एजुकेशन turns around the whole society. ये कितनी important चीज है कि लोग अगर right education में invest करें, they can grow into the real professionalism and the environment that is needed. So cut the story short, and if I sum it up here, that the HR industry is open for the youth, and it is very welcoming, provided we find the right resources, which we are. I have comparisons to many countries in our region, and as the time goes and the discussion goes by, we can discuss that. थैंक यू सजवानी साहब, म्यूटिंग द माइक. ओके जवाद, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एम्फेसाइज किया है सजवानी साहब ने एजुकेशन के ऊपर. एंड व्हेन आई गो टू द एजुकेशन, आई कम टू नो दैट 4.5 मिलियन न्यू जॉब्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एंटरटेन यूथ ऑफ पाकिस्तान. ये 4.5 मिलियन जॉब्स उन नौजवानों के लिए हैं जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन हासिल कर ली थी. मैं ये देख रहा हूँ कि 9.45 मिलियन, दैट इज अराउंड 10 मिलियन पीपल ऐसे बच्चे हैं जो यूथ पे आने से पहले ही अपनी प्राइमरी एजुकेशन लेने से डिप्राइव्ड रहते हैं. यू बीइंग द एम्बेसडर ऑफ यूथ, टेल मी कि जैसे सजवानी कह रहे हैं, आप यूथ के एम्बेसडर अगर हैं, एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू टू नेम फ्यू ऑफ द problems or challenges you are facing today from the HR community, what would be that list? You share with us. Okay, thank you Shahzad. Shahzad, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, that is के youth को क्या problems जो है वो आ रही है. Before I go there, मैं दो चीजें जो सजवानी साहब ने कही है, because the purpose is not to answer what is being asked, but to have a productive discussion. ठीक है. So I am an ambassador of youth. तो जहाँ मुझे disagreement हो, I would seek clarity from experienced people. So first हमने बात की international exposure की, फिर हमने बात की education की. मेरे ख्याल में youth को सबसे ज्यादा जो problems आ रही है आजकल, वो लोग जो परेशान भी है कि जिस तरह आपने नंबर्स बताए कि मिलियंस ऑफ पीपल आर जॉबलेस, उसकी एक बड़ी वजह मुझे ये नजर आती है कि सेल्फ डेवलपमेंट के टॉपिक पे उस दिन हम बात कर रहे थे. एक तो
हम जो फॉर्मल डिग्री हमें मिलती है, वी कंसिडर दैट एन एजुकेशन. We don't go we don't go for reading general books, we don't go for other education. मेरे ख्याल में एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट इज स्किल बेस्ड एजुकेशन, उसकी काफी कमी है. ठीक है. सेकेंडली मैं ये कहूंगा एट दिस प्लेटफॉर्म बीइंग अ यूथ, और यूथ को भी मेरा ये मैसेज है कि वो जब एजुकेशन की बात करती है, सो एजुकेशन डजंट स्टॉप जिस दिन आपकी कॉन्वोकेशन होती है, जिस दिन आपको डिग्री मिलती है. ठीक है. यू गो टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. जिस तरह सजवानी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि पीपल स्टार्टेड एज इंटर्न्स और एट वेरी जूनियर लेवल, और आज जो है वो एक्सपर्ट्स है और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में बड़े लेवल्स पे बैठे हुए हैं. सो माय मैसेज हियर इज कि आप डिग्री लेने के बाद भी इफ यू गो टू अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे देन यू विल हैव टू असेस what additional courses you have to go for, what additional courses you have to take so that आप ऑर्गेनाइजेशन में आगे आसानी से बढ़ सके. अब वो यूथ जो मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद मार्केट में जाती है, अनफॉर्चुनेटली उनको ये पता नहीं होता कि हाउ टू मार्केट देमसेल्व्स. सीवी उनका सही नहीं बना होता, दे डोंट नो हाउ टू प्रोफेशनली अप्लाई फॉर अ जॉब. उसके बाद अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले भी जाते हैं, व्हाट हैपेंस देयर इज कि वो सून रियलाइज कर लेते हैं द एनवायरनमेंट देयर इज वेरी चैलेंजिंग फॉर देम एंड दे कैन कॉप विद देम. तो मैंने ऐसे भी डिस्करेज लोग देखे हैं कि वो पाकिस्तान में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद फिर कहते हैं कि I think there is ठीक है. तो देयर आई अग्री विद सजवानी साहब के बाहर अगर आप ऐसी सिचुएशंस में जाते हैं तो शायद वहां से भी आप डिस्करेज वापस आए. बट आई जस्ट वांट टू ऐड अ पॉइंट. अगर पाकिस्तान में आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा. जवाब आपकी टेक्ना Do you want me to there is some reconnect? problem with Jawad, and we are talking about youth centricity, and youth centricity के ऊपर हम सजवानी साहब से बात करेंगे कि साइट्स जो हैं उनका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा है. नॉर्मली बहुत ज़्यादा था, लेकिन विद दिस पेंडेमिक थिंग कमिंग अप, आई वाज जस्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ साइट्स वी हैव. इट इज़ अराउंड 11 platforms which a youth go on daily basis. What do you say about this social networking sites usage with respect to youth? Over to Sajwani साहब. इससे पहले जो मैं शहजाद आपकी इस बात का जवाब दूं कि हमारी यूथ थोड़ी सी डिसइल्यूजन भी है. अभी रिसेंटली एक इंडियन फिल्म स्टार ने सुसाइड कमिट किया, एंड आई वाज रीडिंग सम फैक्ट्स अबाउट हिम. आई एम टॉकिंग अबाउट सुशांत सिंह राजपूत, who is a famous Indian film star, and he was a TV star as well. He had 11.1 million followers on Instagram and 1.9 million followers on Twitter. And to my surprise, all these followers, inke bawajood, he was alone and he committed suicide. So this is something that worries me, that our youth needs to understand the fact that social media, yes, that is an area that we should spend our time where we are not committed. But in इस pandemic की वजह से या otherwise, जो खाने की मेज से लेकर दिन भर और रात को सोने तक, if our youth is engaged on these social media sites and chatting and Netflix and YouTube and watching whatever, I mean, this mainly I feel that this poisons, and this leaves you more into isolation instead of एक जमाना था जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम ईद कार्ड खरीदते थे और फिर उनको डिजाइन करते थे और उनको लिखते थे, उनको सिग्नेचर्स करते थे, और उसके बाद हम उनको पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू जो है वो डिस्पैच करते थे. उसके नतीजे में अब क्या आया है कि हम एक बल्क
व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं, and we feel that our relatives and our friends and our well-wishers have received with the same enthusiasm our greetings, which may not be the case. People ignore it. People disregard it at times because इतनी ज्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस आए हुए हैं और इतनी सारी पिक्चर्स आई हुई हैं और इतनी सारी वेल विशेस आई हुई हैं कि जिनको पढ़ने में शायद कई दिन लगते हैं. सो मेरा कहने का मकसद यह है कि हर चीज में एतदाल और मयाना रवी जिसकी हम बात करते हैं, बैलेंस करने की जरूरत है कि हम कहाँ तक चीजों को उनके राइट पर्सपेक्टिव में देखें. और ये चीज जरूरी है कि सोशल मीडिया पे जितना टाइम हम स्पेंड करते हैं उसको हमें देखभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय इसके कि हम जो है वो अंधाधुंध तकलीद के चक्कर में सारा वक्त जो है वो आज इधर से मैसेज आया और खट हमने जवाब दे दिया. आई मीन वी शुड हैव आवर ओन पर्सनल टाइम, वी शुड हैव आवर ओन फैमिली टाइम, और वी शुड हैव आवर वर्क टाइम. और उसके बाद जितना टाइम बचता है उसको भी हमें मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए. शहजाद, ओवर टू यू. डोंट नो, हम इसको आइंदा तो नहीं करेंगे, आज इसको करें जरा सेटल. अस्सलाम वालेकुम. सजवानी, कैन यू हियर मी? Yes, I can. I apologize. I don't know if the technology is deceiving us. We were talking about young generations issues, and then we landed ourselves into that use of social networking sites. SNS का जो survey है उसके मुताबिक there are 11 platforms which youth of Pakistan go on daily basis, starting from Facebook, WhatsApp, TikTok, and all that stuff. 11 platforms. You tell me that when a person engages himself into this SN sites, what would be the impact on family relationship when he is spending more time on the social networking sites? While we got disconnected in middle of this conversation, I was quoting the famous Indian actor Sushant Singh Rajput, who committed suicide a few days ago. As per an article which I read, he had 11.1 million followers on Instagram, and he had 1.1 million followers on Twitter. और उस आर्टिकल में नीचे लिखा था, yet he was all alone. What a misery, what a tragedy that when we see that people of such a repute, such a fame, such wealth, so many fancy cars, lovely apartments, they could not let him live because he was all alone. अब सोशल मीडिया पे हम डिपेंड करें कि जी 11.1 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं वो आकर उसको बचा लेंगे, और या 1.1 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स आकर बचा लेंगे. नो, इट इज योर इनर situation, how you are close to your family, how you are close to your God, how you are close to your spirit, how you are close to your soul. ये सब चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि, और हमारे यूथ खाने की टेबल पे बैठ के एक निवाला इधर मुंह में जा रहा है, एक निवाला नाक में जा रहा है, एक निवाला जो है वो टेबल पे गिर रहा है, और इधर जो है वो दूसरे हाथ से एक थंब बेचारा मजबूर. आपको एक पुराना टेलेनोर का एड याद होगा कि वो अपने दोनों जो है वो थम्स जो है वो पानी में सेकने के लिए रखता है, बिकॉज इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं ये दोनों थम्स. तो ये सारी चीजें जो है वो हमें सोचनी चाहिए.
मैं ये कोट कर रहा था कि एक ओके जमाना था। सजवानी साहब, लेट मी गो टू जो अब्दुल जवाद साहब। अब्दुल जवाद साहब के पास मुझे जाने दें। आपने उनके ऊपर एक ना बहुत बड़ा ब्लेम कर दिया है, ये क्लेम हम उनसे लेंगे। अब्दुल जवाद खटक साहब, आपके पास क्वेश्चन ये आया है कि आप जो है वो पूरा टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हैं, आपको खाने पीने का भी कोई होश नहीं होता, रिलेशनशिप का भी कोई होश नहीं होता। देयर वाज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट आई वाज गोइंग थ्रू द अदर डे। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तकरीबन 175 175 मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया और उनको ये पूछा गया कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स को कितना इस्तेमाल करते हैं अपार्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन लेवल। जो रिजल्ट आया 175 सर्वे participants का, it told us that 94% of the people who were surveyed told us that they were excessively using social networking sites apart from the information and education perspective. You tell me that how you are going to safeguard this thing, this usage, that must usage, और फिर आप ये बताएंगे कि इस यूजेज का आउटकम आपकी नजर में क्या है। एंड बिफोर यू गो इनटू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं यहाँ पे ये बता दूं कि अगर किसी वजह से हम तीन में से कोई एक बंदा भी टेक्नोलॉजी की वजह से आउट होता है तो द अदर टू और द अदर रिमेनिंग वन मे कंटिन्यू द टॉक एट द सेम रिदम। ओवर टू यू अब्दुल जवाद खटक। ठीक है जी, सबसे पहले तो जो इल्ज़ाम मुझ पे लगाया गया है वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आजकल जो है हम वाकई इस चीज़ के विक्टिम्स हैं। आईफोन में अब एक ऑप्शन है जिसमें आप स्क्रीन टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड गेस व्हाट, सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस माय स्क्रीन एडिक्शन टाइम यूजिंग ऑफ सोशल मीडिया। आप यकीन करेंगे, आज से 3 महीने पहले भी व्हेन आई ट्रैक दैट टाइम, ऐसे भी दिन थे जहां पे लाइक आई वाज यूजिंग सोशल मीडिया फॉर 6 hours in a day, which is an excessive use of social media, right? तो फिर उसमें एक तो ये है कि आई मीन देयर इज नो डिनाइल कि जी हम सब करते हैं और स्क्रीन एडिक्शन है, और इसको अब क्वेश्चन इज कि इसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि काफी सारी ऐसे लोग हैं जो किताबें नहीं पढ़ते लेकिन वो फेसबुक पे भी आपकी इंफॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस वो देखते हैं। ठीक है, माय टेक हियर इज के आप सबसे पहले स्क्रीन एडिक्शन जो है, आई अग्री दैट इट शुड बी रिड्यूस्ड। हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड उस पे बात होती है। एप्स मैंने अब इस पे ये किया है कि आई हैव entered a specific time, उसके बाद my app is no longer usable और मैं उसमें मजीद टाइम मांगता भी नहीं हूँ। This is how I do it, ठीक है। Secondly, Shehzad, you will be surprised to know कि when I used to work, our phone is usually next to our laptop, ठीक है। काफी ऐसे मौके आए हैं, इट किल्स योर प्रोडक्टिविटी। सो अब मुझे जब एक असाइनमेंट पे काम करना है, आई रियली हैव टू डिलीवर इट, आई विल स्विच ऑफ माय फोन और मैं तब उसको ऑन करूंगा जब मैं वो असाइनमेंट कर लूं। गेस व्हाट, द प्रोडक्टिविटी लेवल इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो एक तो ये है कि अपने ऊपर चेक रखें और देके टाइम ट्रैक करें कि आप इसको किस तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इफ यू आर डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट, इफ यू आर रीडिंग अ बुक, इफ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, इफ यू हैव टू मीट अ डेडलाइन, कोई इसमें कबाहत नहीं है। यू शुड हैव अ सेपरेट वर्क फोन जिसमें डिस्ट्रैक्शंस ना हो, जिसमें फेसबुक ना हो, जिसमें इंस्टाग्राम ना हो, सिर्फ काम की चीजें हो जो वर्क रिलेटेड हो, और आप अपना पर्सनल फोन जो है उसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। बिकॉज जिम रॉन सेज work is serious. At work you cannot afford to do any other things or attend to so many things. Third is कि आप notifications जो है, notifications पे पूरे पॉडकास्ट पड़े हुए हैं, टेड टॉक्स पड़े हुए हैं, ठीक है। आप वो notifications जिससे लाइक ईमेल नोटिफिकेशंस के अलावा या व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप्स के अलावा आप सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें। इफ इट इज रियली इंपॉर्टेंट, आप फिर जाके विदाउट नोटिफिकेशन भी देखेंगे। होता क्या है, हम एक नोटिफिकेशन रिसीव करते हैं, उस नोटिफिकेशन की वजह से भी ओपन द ऐप और फिर वहां पे वो कलरफुल और वो पता है उनको सोशल मीडिया वेबसाइट्स वालों को किस तरह इन लोगों को घेरना है, ठीक है।
then you will start scrolling up and down, घंटे गुजर जाते हैं, it wastes our time. ठीक है, so my tip would be कि notifications आप ऑफ करें. अब अगर फिर भी हम बाज Okay, नहीं जवाब- आते और हमने सोशल मीडिया साइट्स को, यस गो अहेड शहजाद. हाँ, यू होल्ड इट. मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि सजवानी कहते हैं कि आप फेसबुक से, व्हाट्सएप से जो लिटरेचर लेते हैं उसके हमायत के अंदर सजवानी साहब नहीं है. सजवानी साहब का टेक ये है कि जो असल किताब से पढ़ा जाता है असल में वही नॉलेज होता है, यानी कि ये किताब की जो बाइंडिंग है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसको भी इंजॉय करते हैं सजवानी साहब. मेरा टेक सजवानी साहब आपके पास ये है कि सोशल मीडिया हो या इंटरनेट की ओवरऑल बात हो, इंटरनेट की यूजेज के 3 मकासद हो सकते हैं. वन वुड बी इंफॉर्मेशन, the second one would be entertainment and the third one would be connectivity. मैं connectivity की जब बात करता हूँ तो कनेक्टिविटी के अंदर आप सोशल मीडिया के अंदर, जैसे आपने इंडियन एक्टर की बात की, दैट कनेक्टिविटी स्टिल स्टैंड्स देयर ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट दैट इज कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर कनेक्टिविटी विद योर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स. आज आप ये देखिए कि आपका स्क्रीन टाइम वर्सेस पीपल टाइम क्या है, स्क्रीन टाइम वर्सेस फैमिली मेंबर टाइम क्या है. इसके अंदर अगर बैलेंस क्रिएट नहीं है और आज आपकी यूथ इसके ऊपर काम नहीं कर पा रही, यू हैड बीन सर्विंग इन टेलीकॉम इंडस्ट्री, जो कि इसका असल मेन ड्राइवर है, इनेबल करता है टेलीकॉम इंडस्ट्री इस कनेक्टिविटी को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को. यू टेल मी दैट यू बीइंग पार्ट ऑफ दैट सीनियर लेवल इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस, हाउ मच यूथ सेंट्रिक यू वर देयर, हाउ मच यू हैड द पेन कि यार ये सोशल मीडिया की कनेक्टिविटी यूथ की जो है वो सोशल मीडिया के साथ रहनी चाहिए, ये फैमिली के साथ रहने में बैलेंस होना चाहिए. ओवर टू सजवानी साहब. शहजाद, मैं बिल गेट्स से स्टार्ट करूंगा. बिल गेट्स ने खासे अरसे तक, बल्कि अब तक, he has not allowed his kids to use cell phones, and this is a fact. मसला ये है कि हमने अपनी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, सिचुएशन की वजह से कंट्री में अपने 8-8, 9-9 साल के बच्चों के हाथों में मोबाइल फोन्स पकड़ा दिए हैं, जो कि एक तरह से देखा जाए तो सिक्योरिटी रीजनिंग अपनी जगह पे है, लेकिन इसके अलावा जितनी खुराफात बच्चे इसकी वजह से देख पाते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है. और जो आपने दूसरी बात कही कि टेलीकॉम इंडस्ट्री, उसका तो काम ही यही है. आई मीन वो जाहिर है कि एक प्रोडक्ट मार्केट में लाए हैं और उसको जो है वो उन्हें बेचना है, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, ये हमारा काम है कि हम अपने बच्चों से किस हद तक उसकी पूछगछ कर सकते हैं, उनसे हम पता कर सकते हैं कि वो क्या चीजें देख रहे हैं, क्या चीजें नहीं देख रहे हैं. हमारे घर के टेलीविजन सेट्स के अंदर, हमारे यूट्यूब में, बच्चों के लिए यूट्यूब अलग है, लेकिन हमारे माशरे में चूंकि जो अडल्ट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं इस वक्त, उनमें से बहुत लोगों को, क्योंकि वो पास्ट जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं एंड दे डिड नॉट हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी ऑफ दैट सॉर्ट इन देयर यूथ और इन देयर चाइल्डहुड, तो उनको नई चीजें समझ में आ रही हैं और वो अंधाधुंध जो है वो बच्चों को सब कुछ दिलाते हैं सोशल स्टेटस के चक्कर में, और ये सारी चीजें उनके हाथ में दी हुई हैं. लेकिन आई एग्री कि फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. फैमिली टाइम, इट्स नॉट ओनली इमीडिएट फैमिली, इट्स डिस्टेंट फैमिली एज वेल. इट इज कजन्स के लेवल पे भी. वही जो मैं मिसाल दे रहा था, जब हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था, कि एक जमाना था जब हम जो है वो कार्ड्स भेजते थे, ग्रीटिंग कार्ड्स ईद के मौके पर लोगों को, उसमें कितनी मेहनत होती थी. लेकिन वही काम आज हम जो है वो अधूरे दिल के साथ या पूरे दिल के साथ व्हाट्सएप की सूरत में बल्क में मैसेजेस भेज रहे होते हैं, और आगे जो रिसीवर है वो कितनी चाहत से और कितनी मोहब्बत से और कितनी शफकत से उसको रिसीव कर रहा है, और वो पढ़ भी रहा है या पढ़े बगैर वो डिलीट कर रहा है या पढ़े बगैर उसके जो है वो आर्काइव्स में चली जाती चीजें. तो ये सब चीजें अपनी जगह पर हैं, और मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, लेकिन एज रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हमारा काम भी यही है कि हम अपने बच्चों को सही और गलत, जो आपने बात कही कि किताब की बात की, मेरे नजदीक जो इंफॉर्मेशन
फ्लड आया हुआ है, जो इंफॉर्मेशन फ्लड गेट इस वक्त ओपन हुआ है थ्रू इंटरनेट, उसमें इंफॉर्मेशन भी दो किस्म की है, एक गुड इंफॉर्मेशन है और एक बैड इंफॉर्मेशन है। और इसमें तमीज हमें करनी है, क्योंकि ये नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है जो हमें सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो दी जाती है। अब उसमें तमीज करना हमारा अपना काम है, एज इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बीइंग। हमारे पेरेंट्स का काम है कि वो हमारी मदद करें, हमारे बड़े बुजुर्गों का काम है कि जो हमें हेल्प करें, हमारे अच्छे दोस्तों का काम है जो हमें गाइड करें और सपोर्ट करें। क्योंकि हर अच्छी चीज इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, सॉरी, हर चीज इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, उसमें गुड और बैड का हमें मवाजना करना चाहिए। शहजाद। ओके 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 सजवानी साहब, ओके। अब्दुल जवाद खटक साहब, कमिंग बैक टू यू। मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, आप इसको कंटिन्यू कर लेंगे, बट आई नीड क्रिस्प एंड शॉर्ट आंसर फ्रॉम अब्दुल जवाद खटक। अब अभी क्वेश्चन ये है कि अगर हम सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं और उसका इतना ही जरूरी है इस्तेमाल, जितना कि आप बता रहे हैं कि आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, ये काम कर लें, लेकिन वो करते रहे हैं। वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस के विदाउट दिस सोशल मीडिया एंड इंटरनेट थिंग we cannot survive in today's digital world. I was reading a data which says that out of 100 million mobile users, 29 million are internet users. And out of those 29 million, 92% of the internet users use this internet on their mobile handsets. मोबाइल हैंडसेट्स के ऊपर इंटरनेट का यूजेज बहुत ज्यादा है। मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा अब्दुल जवाद खटक साहब कि व्हाट कैरियर ऑप्शंस यू एज यूथ सी के आजकल की एज के अंदर कौन से कैरियर ऑप्शंस ऐसे हैं जिनके अंदर यूथ को ज्यादा इंडल्ज होना चाहिए? ओवर टू अब्दुल जवाद खटक। ठीक है। शहजाद, आपने जो कंक्लूड किया और सजवानी साहब ने जो बात की, देखिए जिस दौर में हम रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बगैर, सोशल मीडिया के बगैर, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के बगैर, आई वुड से वी कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट। ठीक है, इसका गलत यूज या सही यूज, सजवानी साहब ने सही कहा। मेरे ख्याल में जितने भी हमारे बड़े हैं, अगर फॉर सम रीजन इफ वी आर गिविंग अ सेल फोन टू आवर किड्स, वहां पे ये जरूरी है कि उनको साथ ये भी गाइड किया जाए हाउ टू यूज इट यूजफुली। ठीक है, प्रोडक्टिवली उसको कैसे यूज किया जाए। तो दैट्स इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी को डिनाई नहीं करना चाहिए, इट्स द नीड ऑफ द आवर, वी हैव टू अडेप्ट टू इट। इसका प्रोडक्टिव यूज कैसे करें, उसके लिए सजवानी साहब रियली मेड अ गुड सजेशन। अच्छा, इन टुडेज एज कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस है जिसमें लोगों को जाना चाहिए? मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। यूथ की जब बात होती है तो यूट्यूब और ऑनलाइन पैसे कमाना, दिस वाज समथिंग जिसको लोग एक एक्चुअल जॉब समझते ही नहीं थे। ठीक है, इन टुडेज वर्ल्ड में अगर एक डायरेक्शन की बात करूं तो आई वुड से कि फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, फ्रीलांसिंग इज समथिंग कि आप 9 to 5 किसी कंपनी के लिए जॉब नहीं करते, यू वर्क ऑन योर स्किल सेट। आपके आईटी स्किल्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, एक किताब है द 4 hours वीक, तो वो अगर आप पढ़ते हैं उसमें इवन लोग ये भी आउटसोर्स करते हैं दैट यू आर गोना कम एंड कुक फूड फॉर मी। इस तरह की चीजें भी आउटसोर्स होती है। ठीक है, अब पेंडेमिक के बाद लोग काफी रियलाइज हो गया है कि वो काम जो हम नामुमकिन समझते थे वो भी ऑनलाइन हो सकते हैं। सो वन एरिया वेयर पीपल शुड इन्वेस्ट मनी इन, कि वो अपने स्किल्स पे काम करें, इंटरनेट पे जाए और इंटरनेट पे ही पैसे कमाए। Is nice. That is really nice. Now, coming back to the last question of the program today, to both of you, मैं ये question दोनों के पास लेके आऊंगा, starting with सजवानी। जी सजवानी साहब, कैन यू हेयर मी? आई थिंक शहजाद
has issues with his connection. Yes, I can hear you, Jawad. I'll be the host. चूंकि टाइम भी कम है, तो let us utilize this time. मैं सर आपसे ये पूछना Yeah. चाहूंगा कि since we are talking about कि इस एज में, चूंकि इंटरनेट के बगैर, इन डिवाइसेस के बगैर, इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, ठीक है। आपसे सिंपल सा एक सवाल ये है, मैंने भी एक तजवीज़ दी, लेकिन इन चीज़ों को कैसे हम अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, इफ यू आर गिवन अ लेमन तो मेक अ लेमनेड। अब ये चीजें, इन चीजों के बगैर हम रह नहीं सकते, इनको अब कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि यूथ या जो भी हो वो इससे फायदा उठा सके। नहीं, डेफिनेटली इसके बगैर गुजारा नहीं। और आप सोचें, पेंडेमिक विदाउट इंटरनेट, अगर ये 19वीं सदी में आया था या 20वीं सदी में आया था, तो आप सोचें कि क्या हालात होंगे उस टाइम पर, जबकि लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते। तो डेफिनेटली इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स एन इनोवेशन एंड वी शुड यूज इट। लेकिन वही जो मैंने कहा था कि हर चीज का एतदाल, हर चीज में मयाना रवि, हर चीज में बैलेंस, ये बहुत जरूरी है। हम लाइफ को लाइफ के तौर पे ट्रीट करें, क्योंकि जिसके अंदर सिर्फ दुनिया नहीं है, इसके अंदर मजहब का अमल दखल है, इसके अंदर हमें टाइम मैनेज करने की जरूरत है, इसमें हमारी नमाजें, हमारी इबादत के लिए वक्त हमारे पास होना चाहिए। वही जो आप कह रहे थे कि नोटिफिकेशंस बंद कर दें, और उसके अलावा मुझे याद है एक जमाने में मैं अपना आउटलुक जो है वो ऑफिस में दिन में सिर्फ 2 दफा खोलता था, जस्ट टू चेक कि मेरी क्या ईमेल्स आई हैं। एक सुबह फौरन आने के बाद और एक लंच के बाद मैक्सिमम, या फिर दफ्तर छोड़ने से पहले एक दफा। एंड इट यूज टू वर्क फॉर मी, बिकॉज पूरा दिन अगर आप आउटलुक खुला रखेंगे और अपनी ईमेल्स देखते रहेंगे, फिर आप और कोई काम तो कर ही नहीं सकते। इसी तरह से अगर सोशल मीडिया आपके हैंडसेट के ऊपर ऑन है, जिसमें फेसबुक भी है, जिसमें स्काइप भी है, जिसमें ट्विटर भी है, जिसमें इंस्टाग्राम भी है, जिसके अंदर अल्लाह जाने और कितनी 22 चीजों के नाम गिनवाए थे शहजाद ने, तो इतनी सारी चीजें हैं और हमारे फोन्स में मोस्टली ये सारी चीजें हैं। हम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बींग्स और हमारा एक अटेंशन स्पैन है, उसके अलावा तो हम नहीं कर सकते। तो हमें मुनासिब है कि हम इन चीजों को तरीके से लें, और जिन चीजों की जरूरत है, जो काम है, उस टाइम पर हम साइन आउट कर जाएं और घर जाके दोबारा साइन इन कर लें। और जरूरी नहीं कि हर नोटिफिकेशन हमें चेक करनी है। जिस तरह व्हाट्सएप पे जिन जिन ग्रुप्स में हूँ, मैंने एक एक साल के लिए जो है वो उसको म्यूट किया हुआ है, एक एक साल के लिए। आई डोंट चेक देम अनलेस इट इज नेसेसरी, क्योंकि उसमें एक दिन, एक हफ्ता या एक साल का जो गैप है, आई डू इट लाइक दैट बिकॉज दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू मी, मेरे अपने बाकी कामों से के मुकाबले में। तो मेरा शॉर्ट आंसर ये है कि हम इन चीजों को अगर तरीके से मैनेज करें, क्योंकि गुड नॉलेज या गुड इंफॉर्मेशन और बैड इंफॉर्मेशन में अगर हमने तमीज करना सीख ली, तो उससे हमारी जिंदगी के बहुत सारे मसाइल हल होंगे। अग्रीड सर। जो सवाल शहजाद पूछना चाह रहा था, आई थिंक ही इज लाइव बैक। ओवर टू यू शहजाद। Okay, we started the program today with that misguided missile. यूथ जो है वो मिसगाइडेड मिसाइल के तौर पे आज भी आपको नजर आएगी, लेकिन आउट ऑफ दिस मॉब you are going to find few of the youth people who are sitting at sea level in the different organizations, and that was beautiful off take of the program today. फिर हमने अब्दुल जवाद खटक साहब से ये सीखा कि आप किस तरह से अपने जो मोबाइल का है उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. यू कैन स्विच देम ऑफ, यू कैन स्विच ऑफ द नोटिफिकेशंस व्हाइल वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, एंड यू कैन रिड्यूस द स्क्रीन टाइम वेरी डेलिबरेटली, जिस तरह से आईफोन की एग्जांपल इन्होंने दी. एंड देन वी came again to Sajwani, where he told us the difference between the use of information. Information can be good or bad, and another important thing to quote is that information is information, it is not the knowledge. You have to bifurcate good information from the bad one, and you have to convert it into knowledge for potential knowledge to actual knowledge. मैं आज इस प्लेटफॉर्म से डिपार्ट करते हुए आपको 12 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम ले रहा हूँ, एंड यू आर गोइंग टू चेक देम आउट कि इन 12 सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया में से कौन सा ऐसा मीडिया है या प्लेटफॉर्म है
जिसको आप एक हफ्ते के लिए इस्तेमाल ना करें तो आपकी सेहत के ऊपर फर्क पड़ेगा नेगेटिवली. आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट हियर फॉर योर कन्वीनियंस. फेसबुक, ट्विटर, माईस्पेस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वाइबर, व्हाट्सएप, टम्बलर, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, टिकटॉक और इसके अलावा बहुत से ब्लॉग्स जिनके अंदर आप रोजाना की बेस पे इंक्लूड होते हैं. इसके अंदर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स जो हैं सोशल मीडिया के, वो मैं अभी शामिल नहीं कर रहा हूँ. जस्ट लाइक लिंक्डइन. You imagine that if a person from youth is spending that much time on digital screen, he is compromising on family network. और आपसे जवाब जाने से पहले मैं ये पूछूंगा कि अगर यूथ सोशल मीडिया के ऊपर इतना टाइम स्पेंड कर रही है, तो फिर जहां पे फैमिली के अंदर उसकी एक कंट्रीब्यूशन कम हो रही है, उसकी अपनी हेल्थ के ऊपर कौन कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं. ओवर टू अब्दुल जवाद खटक साहब, एंड दिस इज प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड. वी आर गोइंग टू क्लोज आफ्टर इट. ठीक, शहजाद सी, इट्स अ गिवन दैट कि अगर आप मोबाइल फोन को अपना सारा टाइम देते हैं, सजवानी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि इवन व्हेन वी आर ईटिंग, व्हेन वी आर यूजिंग आवर फोन, कुछ भी आप कर रहे हो, ठीक है, हम अपना मोबाइल यूज कर रहे होते, ठीक है. माएँ जो है व्हेन जो अपने बच्चों को सुला रहे होते हैं, वन हैंड वो किचन में जो है ड्रामाज जो है वो चल रहे होते हैं, ठीक है. तो स्क्रीन टाइम इज देयर. सोशल मीडिया की अगर बात होती है, देखिए इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डिप्रेशन जो है, इट इज कॉजिंग डिप्रेशन. मेरा अपना एक टेक है, ठीक है, क्योंकि फॉर नो रीजन इफ यू आर स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन इट मेक्स यू नम, ठीक है जी. तो डेफिनेटली फिर आप बास टाइम आप फैमिली के साथ ही बैठे होते हैं, बट यू आर यूजिंग योर फोन, आप वो अटेंशन नहीं दे पा रहे होते. इसका इम्पैक्ट ये है कि व्हेन वी फ्रेंड्स सिट, हर जगह यही सीन है, एवरीबडी वुड टेक आउट देयर फोन. वो फिजिकली भी, स्क्रीन टाइम भी नहीं, अगर फिजिकली भी हम एक साथ बैठे हुए हैं, इट इज एक्चुअली कॉजिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि एवरीबडी थिंक्स के हम एक साथ तो है, आई एम सेइंग समथिंग, वो मुझे अटेंटिवली सुन नहीं रहा, ठीक है. सेम गोज विद फैमिली. कुछ रूल्स बनाने चाहिए. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन. मैं सजेशन ये दूंगा, तजवीज ये दूंगा कि एज आई सेड दैट डे, कि हर कोई एट द एंड ऑफ द डे बैठ के अगर ये सोचे कि आज मैंने 5 घंटे फोन यूज किया है, आज मैं 10 लोगों से मिला हूं, आज मैंने किसी एक बंदे के साथ नेगोशिएशन की है, आई मेट माय कस्टमर, मैं इन सारे कामों को बेहतर कैसे कर सकता था. तो उसमें आपका मोबाइल फोन भी आ जाएगा. जी, आई यूज इट फॉर 6 आवर्स, व्हाट वाज द प्रोडक्टिविटी का जब आप गेज करेंगे, आपको पता चलेगा जी कि यू वेस्टेड योर टाइम. आपने इंफॉर्मेशन जो है गेन की है, नॉलेज आपने कुछ नहीं गेन किया, आपने एक ही चीज 100 दफा स्क्रॉल अप एंड डाउन की है, उसका कुछ फायदा नहीं हुआ. नेक्स्ट डे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू वर्क ऑन इट एंड रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम. सो असेस व्हाटएवर you do at the end of the day, and I think you will find answer to many of the things. Michael, that is best way to close the program, where you have told us के assess करें अपने every action को, आप खुद से audit करें कि कौन कौन से actions जो हैं वो आपको आपके bigger vision और purpose की तरफ लेके जा रहे हैं on daily basis. With this, I would really thank both of you great people for coming on this platform, and I'm going to make sure, inshallah, that it will go flawlessly from next time onward. And today, just the final off take for today's youth is कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं, यूथ सेंट्रिक होने के हवाले से जो एचआर के बड़े प्रोफेशनल्स हैं, इंडस्ट्री के मेन ड्राइवर्स रह चुके हैं, वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि यूथ जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को जरूर यूज करे, लेकिन एक रैशनल और बैलेंस के साथ यूज करें. एंड व्हाट द ब्यूटीफुल ऑफ टेक वाज फ्रॉम अब्दुल जवाद खटक के यू कन्वर्ट दिस यूजेज इनटू स्किल सेट लर्निंग एंड यू कन्वर्ट इट into freelancing business and other portfolios. इसको revenue generating mainstream बना सकते हैं with this pandemic and digital transformation. With this, I would really love to have the comments from you audience on this program, and you come on the platform yourself. You suggest us the topics for next week's program. With this, inshallah, take very best care of yourself. Thank you very much, Jawad, and thank you very much, Sajwani Saab. See you next time. Inshallah, take care. Allah Hafiz.